students, today we will learn about the body-mind relationship. So the body has a coordination with our brain, or we call as a mind. Okay, so let's see the what's in the introduction part. It says the mind is a faculty of consciousness and thoughts. Behavior is the way in which someone behaves, act or conduct oneself in a specified way. So behavior is what how you behave in a some special conduct or your action on a specified way is known as your behavior. आप किस तरह से किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, मीन्स अगर आपको किसी ने डांटा तो आपने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, दैट इज़ योर बिहेवियर. ओके, अगर आपने किसी ने डांटा एंड यू क्राई, दैट इज़ योर बिहेवियर. मीन्स यू फील गिल्टी फॉर योर एक्शन और वॉट द किसी ने पर्सन ने आपको डांटा तो उस चीज़ों के लिए. बिहेवियर मीन्स ऑल द कॉवर्ट एंड आउटवर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व. बिहेवियर इज़ द थिंग बेसिकली जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या आपने सुना भी है या आप खुद भी बोलते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो लोगों से कोऑपरेट करता नहीं है, तो दैट इज़ अ बिहेवियर. ओके, इट मे बी कॉग्निटिव विच इज़ नोन एज नोइंग, अफेक्टिव विच इज़ फीलिंग एंड साइकोमोटर विच इज़ नोन एज डूइंग. सो हमारा जो बिहेवियर है बेसिक थ्री इसमें कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट वन इज़ योर कॉग्निटिव. कॉग्निटिव मीन्स what you know about a particular thing. Then effective means what it's your feeling. Okay, what do you feel or how you feel about a certain situation. And the psychomotor activity is that doing, how you act. Okay, so behavior combination of three चीज़ों का होता है. First one is your cognitive, second one is your affective, and the third one is your psychomotor, that is known as doing. There is an interaction of mind and body in behavior which affects of the mind or body on mind, that is the physically or identifiable events or a psychological functioning on a behavior. For example, taking a stimulant, caffeine and nicotine increases CNS activity, particularly by enhancing the dopamine activity and increases the alertness, suppresses the appetite, etc. Similarly effects of mind. So हमारा जो बिहेवियर है वो बॉडी माइंड रिलेशनशिप हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है. तो बॉडी का माइंड से कैसे है, फिर फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है कि कोई स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम लोग बहुत टायर्ड फील करते हैं या फिर हम बहुत देर से वर्क कंटिन्यूसली कर रहे हैं एंड वी वांट टू गेट अ रिलैक्सेशन, सो व्हाट वी गो फॉर सम कैफीन और निकोटीन सब्सटेंस लाइक अ coffee or a tea or a cigarette. That time what happens, these stimulants will increases the CNS activity on a particular enhancing the particular things such as dopamine, which will increase your alertness. Once means for example आप लोग जब एग्ज़ाम टाइम्स में पढ़ते हैं एंड पढ़ते पढ़ते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं या आपको लो फील होने लगता है, what you go for some coffee or a tea, or some boys use or some people used to go for this cigarette. Then what it happens, आप वापस अपने प्रीवियस की एक्टिविटी में आ जाते हैं. Then it makes you alert. First thing, then it suppresses your appetite. Okay, आपको भूख नहीं लगेगी and etc. some similarities affects the mind. So आपने कुछ चीज़ ऐसा कंज्यूम किया जो आपके बॉडी को लिए लिया एंड ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को इफेक्ट किया, एक्शन शो किया. ओके, what other things it is, the nervous system and glands have a potent to effect upon our thinking and feeling the over of action certain hormones in our body and give us excitement. Let us illustrate the effect of body upon mind and mind upon body. So modulation process in health and illness includes action of body upon mind and mind upon body. ग्लैंड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके थिंकिंग एंड फीलिंग को इफ़ेक्ट करता है. योर हार्मोन्स ऑल्सो इफेक्ट योर थिंकिंग और फीलिंग प्रोसेस. सो एक हम इसको सिंपली लेते हैं कि बॉडी का माइंड के ऊपर एंड माइंड का बॉडी के ऊपर क्या रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल मीन्स इफ़ यू आर अनहेल्दी और यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस डिजीज़ और इलनेस, तो वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लगने लगता है कि यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी तबीयत कितने दिन ख़राब होगी, पता नहीं क्या होने वाला. योर ब्रेन इज़ गेटिंग सम नेगेटिव मैसेज, दैट इज़ बॉडी एक्शन अपॉन माइंड. माइंड अपॉन
बॉडी मीन्स इफ़ यू आर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपने कुछ फॉर्म अप्लाई किया है और आपका एग्ज़ाम्स है, ओके, एंड यू हैव अ स्ट्रेस कि मैं कोर्स कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, सिलेबस इतना पढ़ने को है और एग्ज़ाम्स के लिए टाइम कम बचे, दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अफेक्ट योर बॉडी। हाउ? बाई एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, सम स्टूडेंट्स को लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाता है, सब स्टूडेंट को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। सो माइंड एक्शन अपॉन बॉडी, एंड वी हैव सीन दिस इज द सेकेंड वन, एंड बॉडी एक्शन अपॉन माइंड, कुछ भी अगर इलनेस है उसकी वजह से हमारे ब्रेन में इफेक्ट होना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बॉडी अपॉन माइंड एंड माइंड अपॉन बॉडी. So let's see the analysis of mental phenomena. The consciousness experience reveal itself in three separate and distinct mental process. These are cognition, affection and conation. That is the knowing process and feeling process and the process of action. These three mental process are also called modes of consciousness and modes of this becoming a conscious. Okay, सो दिस कॉन्शियस एक्सपीरियंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि फर्स्ट वन इज़ योर कॉग्निटिव, योर अफेक्शन एंड कोलेशन, दैट इज़ नोइंग, फीलिंग एंड डूइंग एक्शन. सो हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो बेसिकली थ्री चीज़ों में वर्क करता है, दैट इज़ योर फर्स्ट नोइंग हाउ मच यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, what is your feeling about particular situation and how you act upon on that particular situation. Okay, then next we will see the mind as consciousness and unconsciousness as a dynamic whole. In the psychology of the human minds was sometimes considered as merely collection of many faculties. Thus, according to a faculty of psychology, human mind has many powers and there are different centers of these powers in the mind. Mind is not a collection of but a dynamic whole. It is changing the mental powers and process constantly and developing the interaction with the environment. So हमारे माइंड का कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ह्यूमन माइंड हैज़ अ पावर टू कंट्रोल इन नंबर्स ऑफ थिंग्स. सो माइंड इज़ नॉट ओनली अ कलेक्शन, मीन्स ये डायनेमिक प्रोसेस है और पावर्स है जिसमें हम कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इफेक्ट. इन द interpretation of a mental behavior, Freud has given the hypothesis of three elements: id, ego and superego. Of this, id is the inborn character. Okay, inborn things, thirst, okay, hungriness, this is inborn, and but ego and super, which is developed when you come in the contact with the environment. Okay, so thus in the modern psychology is the mind of consciousness and unconsciously dynamic. They simply have the concept regarding about this psychology of mind with those with two main concepts, which is your conscious and unconscious effect in the brain. Okay, then let's see the consciousness. The mental life is a continuous process, but in it the certain concentric fields can be observed. For example, everyone knows of the mental life of the dreams or sleep is different from the life of waking stage. So consciousness कैसा है कि what you observe, what you know, what you feel, thinking, judgment आपके awareness में, that is the consciousness. Okay, so आपको ड्रीम देखा एंड व्हाट दिस आपका अनकॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, हिप्नोटिज्म, हम हिप्नोटाइज करके इंडिविजुअल केस अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगे जहाँ उसके ऐसे डिज़ायर्स या ऐसे थॉट्स लकी स्टोर है जो हम ऑब्जर्व करके नहीं जानते बट वो उसके अंदर में हैं. ओके, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं. प्रूफ फ्रॉम मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ भी प्रूफ करता है. साइकोपैथोलॉजीज ऑफ एवरीडे लाइफ, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड अदर प्रूफ्स आर देयर विच इज़ रिलेटेड विथ आवर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, दिस अबाउट ऑल अबाउट द अनकॉन्शियस इफेक्ट. ओके, सो इसमें बेसिक हमें ये योर बिहेवियर हैज़ अ टू मेन, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दिस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. हाउ योर बिहेवियर इज अबाउट द मीन्स आप जो बिहेवियर आप शो कर रहे हैं वो इट इज़ सराउंडेड बाय योर सम ग्रेटर देन योर साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना. वो बहुत सारी चीज़